Hello, dear students. My name is Nikhil Mishra, and I have done my MTech from IIT Delhi. And today we are going to discuss what is physics, what are the various aspects of physics, and how is physics defined, and how does physics help us in our real life. That is, today we are going to study the basic introduction to physics. So, first of all, what is physics? So, physics is actually making an observation. You'll have to first make an observation. So it's about making an observation. This is first point about physics, and the second point is then explaining the observation generally mathematically. You'll not only have to make an observation, you'll also have to explain the observation. And generally, what we'll have to do, we'll have to explain it mathematically because mathematics is the language of physics. So, physics is all about making an observation and then explaining the observation mathematically. See, it's not only about making an observation, everybody makes an observation. Whether you are there or somebody who is our shopkeeper, everybody is making an observation like an apple is falling. So an apple is falling, everybody is saying that an apple is falling, so everybody is making an observation. But only a student of physics can explain why is the apple falling or what are the forces that are governing the fall of the apple. So the student of physics basically does two things. The first thing is makes an observation, and the second thing is that he explains his observation, and generally he explains mathematically. For example, in the case of apple falling to earth, what he will do is that he will state that the force acting on apple due to earth is equal to g into mass of apple into mass of earth divided by r square, where r is the distance in between the center of earth and the apple. So it's quite convenient for a student of physics to explain his observation mathematically. Now, how did the physics developed, or actually how does the development of physics take place? So what we do basically, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि हम लोग करते क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक चेस गेम है, ठीक है, और इस चेस गेम में हो क्या रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जब आप ऐसा बोल सकते हो दो प्लेयर्स चेस गेम खेल रहे हैं और दोनों एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं, और हमारे पास जो हमारा एक ऑब्जर्वर है वो नोविस ऑब्जर्वर है। नोविस ऑब्जर्वर का मतलब द ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग द गेम ऑफ द चेस इज अ नोविस ऑब्जर्वर। ही डज नॉट नो अबाउट द रूल्स ऑफ द चेस, but he's sitting there and observing the game of the chess. So in the process, what he does, he sees that what is happening over here. Suppose the experienced player, the first player, makes a move. He moves his pawn by two steps, okay, in the first move. Now the novice observer who is observing, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि ये जो प्यादा है जो आगे चला है दो स्टेप, वो हर बार दो स्टेप ही चलता है। तो वो प्यादे के लिए एक रूल लिख देगा कि प्यादा जो है वो दो स्टेप चलता है। लेकिन जब वो और इस गेम को आगे ऑब्जर्व करेगा तो उसको ऐसा दिखेगा कि पहली बार में तो प्यादे ने दो स्टेप चला, लेकिन बाकी हर बार वो एक ही स्टेप चल रहा है। तो अपने रूल को मॉडिफाई करेगा और वो लिखेगा कि प्यादा पहली बार में दो स्टेप चल सकता है और आगे वो केवल एक स्टेप ही चल सकता है। फिर वो ये देखेगा कि प्यादे के सामने अगर कोई और हमारे पास कोई और नाइट या एलिफेंट या कुछ भी आ सकता है, हॉर्स, कुछ भी आ गया अगर प्यादे के सामने, तो वो वैसे ही रुक जाएगा प्यादा। बट डायगनली कुछ अगर आ गया तो उसको वो कट कर देगा। तो अब वो नया रूल वो ये लिख रहा है कि प्यादा जो पहली बार में दो स्टेप चलता है, बाकी हर एक बार में वो एक स्टेप चलता है, और सामने कट नहीं कर सकता, वो साइड में कट कर सकता है। तो पहली बार में उसने गलत ऑब्जर्वेशन या पहली बार में उसने गलत रूल लिखा, फिर दूसरी बार में सही कुछ हद तक उसने अपने रूल को करेक्ट किया, तीसरी बार में फिर कुछ हद तक उसने अपने रूल को करेक्ट किया। तो फिजिक्स इज अबाउट इंसेसेंट ऑब्जर्वेशंस। आपको इंसेसेंटली ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे, बार बार ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे रूल्स को आपको फ्रेम करना पड़ेगा। तो ये जो रूल्स होती हैं फिजिक्स की, जो इंसेसेंट ऑब्जर्वेशन के बाद आती हैं और जो हर एक केस में वैलिड होती हैं, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, वो कहलाती हैं लॉज ऑफ फिजिक्स। So, what is basically laws of physics? Laws of physics are the statements that are true at all times in all conditions. ये कभी भी वायलेट नहीं हो सकती है। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास एक लॉ ऑफ फिजिक्स है, F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। अब ये जो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी जो हमारा लॉ है, वो हर एक केस में ट्रू है। अभी तक इसका एक्सेप्शन नहीं फाइंड आउट किया गया, अभी तक इसका एक्सेप्शन हमें नहीं मिला है। पर यदि कोई ऐसा केस आ जाए हमारे पास जिसमें कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी जो है ये वायलेट होता है, ये अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे कि ऐसा हमारे पास कोई फिनोमिनन है जिसमें कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका वायलेशन है,
तो फिलहाल F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जो कि लॉ ऑफ फिजिक्स कहला रहा है, इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स, वो उस वक्त अगर ये वायलेट हो गया तो अब लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं कहलाएगा, हमें इसे अपने रूल बुक से बाहर करना पड़ेगा. सो दीज आर द लॉज ऑफ फिजिक्स. So what is physics basically? Physics is making an observation and then explaining the observation mathematically. You'll have to make an observation and then you'll have to explain the observation mathematically. Now what we'll have to do over here, now as we have defined physics, now you can see over here that in physics, basically what we are doing is that we are framing the rules and then we are stating them as the laws of physics. Now to write the laws of physics, you can see that there are certain quantities involved, like there is an F involved, there is P involved, there is T involved. So these quantities, that F, P, T, these are known as physical quantities. These are known as physical quantities. So what is a physical quantity? A physical quantity is a quantity that is utilized to write the laws of physics. Physical quantities are utilized to write the laws of physics or to state the laws of physics. Now physical quantity is anything that can be measured. For example, we have mass. Mass is a physical quantity. We are having time is a physical quantity, length is a physical quantity, speed is a physical quantity, and so on. Physical quantity is anything that can be measured. So anything that can be measured is a physical quantity, and to write the laws of physics, these physical quantities are required. So all the things of universe about which you are making an observation, if it can be measured, is a physical quantity. Like example, suppose you are talking about love. So two people are loving each other. Like I say that I love you, and you also say that you love me, and both of us are stating that one loves the other more than the other loves the first one. But there is no measuring instrument. How are you going to measure? So because love cannot be measured, you cannot determine who loves more whom. So love is not a physical quantity. But if I am telling that there are two scales or there are two sticks, and the length of one stick is more than the length of the other stick, it can easily be determined with the help of a meter scale. Meter scale के थ्रू इसको easily determine किया जा सकता है, और इसलिए हम लोग लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं. मैं अगर बोल दूं कि दो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक्स हैं, किसकी वेट ज़्यादा है, तो इजीली उसको स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग नाप करके बता सकते हैं कि किसकी वेट ज़्यादा है. तो वेट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. बट अगर किसी चीज़ का मापन नहीं किया जा सकता, अगर किसी चीज़ को नापा नहीं जा सकता है, अगर उसका मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता है, तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते. तो फिजिकल क्वांटिटी इज़ एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. नाउ to write the physical laws, these physical quantities are required. And in fact, what is a physical law? A physical law is an interrelation in between these physical quantities. इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो इंटररिलेशन होता है, वही हमारी क्या कहलाती है? फिजिकल लॉ. सो फिजिकल लॉ इज एनीथिंग, और फिजिकल लॉ इज ए स्टेटमेंट दैट इज एन इंटररिलेशन इन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिजिकल लॉ लिखूं, अगर किसी फिजिकल लॉ की बात करता हूं, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जिसकी चर्चा हमने पहले ही की थी. तो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज एन इंटररिलेशन इन बिटवीन फोर्स P एंड T. तो फोर्स P एंड T के बीच में जो इंटर रिलेशन है, ये हमारा ये कंप्लीट, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फिजिकल लॉ. सो फिजिकल लॉ इज एन इंटर रिलेशन इन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़. तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है, वो फिजिकल लॉ कहलाता है. ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फिजिक्स. देन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोगों ने फिजिकल लॉ पढ़ा, व्हाट इज़ अ फिजिकल लॉ, और फिर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. नाउ अगर तीनों चीज़ों को हम इन शॉर्ट लिखना चाहें, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर इंटर रिलेशन. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर इंटररिलेशन. तो फिजिक्स जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी है. फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है मोमेंटम, हो सकती है टाइम, हो सकता है
फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सारे जिनको हम मेजर कर सकते हैं सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो इनके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है और इनकी जो स्टडी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि हम फिजिक्स की स्टडी वो कर रहे हैं। और इनके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है वही क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज अ फिजिकल लॉ। तो फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली होती कितनी टाइप की हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ are basically categorized into two types. However, there is a third type also. So, but physical quantities are basically of two types. They are fundamental quantities and derived quantities. However, यहाँ पे हम लोग दो और फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एंगल और सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, बट प्राइमरली वी मस्ट नो दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो व्हाई डिड वी नीड टू, और why we had a need to categorize the physical quantities into two types, fundamental quantities and derived quantities? The basic reason was that because you see, like in case of English, we are talking about the alphabets of English. So if we are talking about the alphabets of English, what is going to happen over here is that there are 26 alphabets. But with the help of these 26 alphabets of English, we can frame almost crores and crores of words. Every day we are developing new words. Daily नए नए words create हो रहे हैं. Selfie, groupie, ये सब पहले नहीं हुआ करते थे, आज से 10 साल पहले. बट नए नए words introduce हो रहे हैं. पर ये सारे के सारे words किससे मिल करके बन रहे हैं? तो प्राइमरली कोई सा भी वर्ड आए इंग्लिश का, वो इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स में से किसी एक अल्फ़ाबेट को इन्वॉल्व करके बनेगा। ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हीं में से इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को आपस में इंटर रिलेट करके हम वर्ड बना सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज़, और फिज़िक्स में भी नई फिजिकल क्वांटिटीज़ डेवलप हो रही हैं विद टाइम, बट देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन फिज़िक्स। और इन सारी ही फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करना चाहें बिना किसी इंटर रिलेशन के, तो हमें बहुत सारे सिंबल्स और हर एक के लिए अलग फार्मूला और अलग उनके लिए डायमेंशंस, अलग यूनिट्स लिखनी पड़ेगी। तो हमें बहुत सारे यूनिट्स एक्सेट्रा ध्यान रखने पड़ेंगे और बहुत ही स्टडी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो जैसे कि इंग्लिश की स्टडी आसान करने के लिए सबसे पहले 26 अल्फ़ाबेट्स बनाए गए और 26 अल्फ़ाबेट से ही बाकी सारे वर्ड्स बनाए गए, ऐसे फिज़िक्स की स्टडी को आसान करने के लिए पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाई गई और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को फिर इंटर रिलेट करके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाई गई। तो जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं फिज़िक्स में, वो है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी and the amount of substance. These are the 7 fundamental quantities. अब इन 7 fundamental quantities की जो बेसिक रिक्वायरमेंट और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है, ये आपस में इंटर रिलेट नहीं की जा सकती। दिस कांट बी इंटर रिलेटेड। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनका आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बी है, जैसे इंग्लिश का शब्द बी है, तो बी एक फंडामेंटल लेटर है, एक फंडामेंटल अल्फ़ाबेट है। आप बाकी ए से लेकर के जेड तक बाकी सारे लेटर्स को यूटिलाइज़ कर लीजिए, आप बी नहीं बना पाइएगा। बी खुद इंडिपेंडेंट है। जैसे डी है, तो आप बाकी सारे लेटर्स को यूटिलाइज़ कर लीजिए, लेकिन आप डी शब्द नहीं प्रोनाउंस कर पाइएगा, डी नहीं लिख पाइएगा। वैसे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंटर रिलेटेड नहीं है आपस में, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। जैसे मैं लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसी भी वे में इंटर रिलेट करके और अगर मास लिखना चाहूँ तो मैं मास को नहीं लिख पाऊंगा। वैसे अगर मैं मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आपस में इंटर रिलेट करके लेंथ लिखना चाहूँ तो लेंथ नहीं लिख पाऊंगा। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, दीज आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। So first thing is this cannot be interrelated, and the second thing is that these are completely independent from each other. Okay? So this is the fundamental characteristic of fundamental quantities, and that is why they are known as fundamental quantities, because they are used to frame other quantities, but you cannot frame them with the help of the rest other fundamental quantities. Whereas if we talk about the derived quantities, अगर हम derived quantities की बात करें तो यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली कि जो derived quantities है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड हो गई,
तो स्पीड को आप लेंथ और टाइम को मिला करके आप स्पीड क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमें स्पीड मिल जाएगी। तो स्पीड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इंटर रिलेटिंग टू फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट इज लेंथ एंड टाइम। तो लेंथ और टाइम को इंटर रिलेट करके हम लोगों ने स्पीड क्रिएट कर लिया। जैसे हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो अगर एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, बिकॉज लेंथ बाय टाइम जो होती है वो वेलोसिटी होती है एंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगेन हम लोगों ने लेंथ और टाइम को इंटर रिलेट करके हम लोगों ने एक्सेलरेशन क्रिएट कर लिया। वैसे अगर हम बात करें फोर्स की, तो नाउ फोर्स इज व्हाट, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने मास को इंटर रिलेट किया, मास इनटू लेंथ बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो मास इनटू लेंथ बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, तो दिस इज व्हाट इज एक्सेलरेशन। So acceleration can be interrelated by or can be derived by interrelating mass, length and time. So derived quantities are those quantities which can be interrelated or which can be derived by interrelating two or more fundamental quantities. Okay, so in the next lecture we will be studying about the different applications of these particular fundamental and derived quantities and how they make our life easy further on. Thank you.